Yes, good morning, students. Good Good morning, morning, sir. sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, So, sir. again, welcome back. Morning, sir. Good. So, once again, welcome in science subject like standard. Sir, your So, voice is all of you cracking knows down. that. Sir, your voice is So should cutting. I crack it again? Your voice is cutting. Beta. I told a number of times are the issues related to network connectivity. So how long you keep on saying the sentences? So as all of you knows that a day before day before yesterday, that is on Saturday, we have completed, okay, chapter number 2 in our subject history. Okay, so the chapter was over, and if you check the class WhatsApp, I have also uploaded the Yes, sir. Question answers. notes, question and answers of chapter number 2. Okay, so any one student has asked me, sir, how do we have to make the notebooks? Well, so dear students, you are required to make 100-page notebook for history. Okay, and then you have to make one more notebook pages in which you are required to write the notes of geography and civics. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, 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 sir. sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir. So Yes, sir. in We can make long book also. अच्छा चलिए. So far we have completed how many chapters? 3 chapters. Geography Three. 2 and 3 chapters. Three chapters. Geography and Okay. Yes. So we have completed so far 3 chapters, 2 chapters in geography and 1 chapter in history. Okay. Now Tejaswini, who is Tejaswini? Yes, sir. Sir, So yes, sir. Tejaswini, please tell me, have you completed question and answers of geography chapter 1 and geography chapter 2? Yes, Tejaswini, have you completed question answers? Yes, Tejaswini. Yes, sir. हाँ. Srushti Matte. Srushti, have you completed Yes, sir. question answers? Okay, ठीक है. So sir. now, Vani, have you completed question answers from both the chapter? Yes, sir. ठीक है. Now, so today we are going to start new chapter in our subject history. Okay, so this is chapter number 3. Got it? We have already completed chapter number 2. Okay, so Yes, I sir. have give by Wednesday, है ना? Today is Monday, so you are having 3-day time: Monday, Tuesday, and Wednesday. In these 3 days, okay, it must be completed. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा. Then today I am going to give one MCQ test on homework app. So all of you are using homework app? No, sir. No, sir. Yes. We don't know about Mostly. that. Okay. Now listen everyone. So today I am going to send the link of your homework in both the classes WhatsApp group. ठीक है? वहां से आप जैसे ही क्लिक करेंगे
आपका डायरेक्ट होमवर्क का पेज ओपन हो जाएगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चले. Okay, so now I am going to share the screen, okay, for the chapter. Okay, so this Okay. chapter is chapter number 3. 3. Okay, so we are going to start with chapter number 3. Okay, and what is the title of the chapter number 3? Ruling the countryside. Ruling the Countryside. Okay, now what does it means? Okay, so when we use the word countryside, so countryside is the word which is basically used for rural areas. Which areas, beta? Rural areas. Rural areas. Okay, RURL. Rural. What is it? Rural. Okay, so rural means villages. Okay, rural means Villages. विलेज एरिया. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Okay, now is there any, yes, just I am asking, is there any Sujal Thire in your class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. ठीक है चले. So side, that is rural areas. It means that in this chapter what basically we are going to discuss, we are going to discuss about ki how did the British East India Company do the administration in villages. ठीक है, शहरों के अलावा विलेज एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है. तो वो जो विलेज एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, उन विलेजेस में या रूरल एरियाज में किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू किया. समवंस माइक इज ऑन. जब किसी को कुछ बोलो, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. एवरी देयर माइक, इफ यू do not require to speak anything, please switch off your mics. Okay, so what is the meaning of countryside, beta? Rural areas. ठीक है, मैंने Rural area. हाँ. So इस पूरे सेक्शन में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपने इलाके के जो रूरल एरियाज थे, ग्रामीण इलाके थे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू किया. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर एंड द फर्स्ट टॉपिक गिवन इन दिस चैप्टर इज द बिकम्स द दीवान. ठीक है. नाउ what does it means? So the company becomes the divan. Divan means a title or the responsibility of doing administration and collecting the taxes. ठीक है. So दीवान मुगल टाइम पीरियड में एक ऐसी पोस्ट होती थी कि जिस व्यक्ति को वो टाइटल या वो पोस्ट मिलेगी, it means the person is responsible for managing the administration of that area along with maintaining the law and order and collecting the tax. यानी जिस व्यक्ति को उस इलाके का दीवान बनाया जाएगा, अब उस व्यक्ति को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है. ठीक है. और
उस व्यक्ति को किस चीज का अधिकार है कि वो उस इलाके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, नियम कानून वगैरह सारे मैनेज करे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द दीवान। सो व्हेन the East India Company decided to become the ruler itself after the defeat of मीर जाफर, है ना, पहले मीर जाफर को नवाब बनाया था, फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया, फिर मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को बनाया। तीनों के साथ कंपनी का सेटअप नहीं चला, तो फाइनली कंपनी ने डिसाइड की become Nawab itself. So on 12th August 1765, ठीक है, मुगल एम्परर अपॉइंटेड कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। तो 12th अगस्त 1765 को उस समय के जो मुगल एम्परर थे शाह आलम सेकंड, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान अपॉइंट कर दिया। Now why the Mughal emperor has appointed? उसका रीजन ये था कि still whole India was considered under the emperorship or kingship of Mughal emperor, है ना। पूरा हिंदुस्तान जो था वो किसके कंट्रोल में माना जाता था? मुगल एम्परर के। भले ही मुगल एम्परर की ताकत खत्म हो गई थी, है ना, कोई खास इंपॉर्टेंस उसका कंट्री की पॉलिटिक्स में नहीं बचा था, परंतु फिर भी स्टिल ही वाज कंसीडर्ड एज ए एम्परर ऑफ इंडिया। अभी भी उसको हिंदुस्तान का बादशाह माना जाता था। इसलिए व्हाट हैपेंस, ही वाज अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ बंगाल। ठीक, the actual event most probably took place in Robert Clive's tent। ठीक है, ये जो अपॉइंटमेंट था वो किया गया था, जिसमें थोड़े बहुत ब्रिटिशियंस थे, परंतु जो पेंटिंग ऊपर हमें शो की गई है ना, उस पेंटिंग में ऐसा बताया गया कंपनी को एज दीवान अपॉइंट करने के लिए बहुत मेजेस्टिक ओकेजन, बड़ा शानदार समारोह किया गया था। ठीक है, क्यों? क्या? बिकॉज was by Clive, the memorable event in Clive's life। ठीक है, इस तरीके की पेंटिंग की ये रॉबर्ट क्लाइव की जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था, है ना, कि उसने हिंदुस्तान में आज एस्टेब्लिश किया, he has established the rule of ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। ठीक है, इसलिए जो पेंटिंग बनवाई गई उसमें ऐसा शौक है, इट इज अ वेरी ग्रैंड ओकेजन। इज इट क्लियर अप टू हियर? Yes, sir. Yes, sir. वानी, यहाँ तक आया समझ में? Yes, sir. Clear. ठीक है, अच्छा, मेरी वॉइस मोस्ट ऑफ द टाइम क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, so the grant of Diwani clearly was one such British imagination। ठीक है, so जिस तरीके से दीवानी राइट मिला वो ब्रिटिशर्स के लिए ही बात थी। ठीक, नाउ एज द दीवान the company became the chief financial administrator of the territories under its control। दीवान बनने के बाद, यानी दीवानी राइट मिलने के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको अपनी जो टेरिटरी है यानी अपने इलाके में सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर अधिकार मिल गया। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर मतलब उनको टैक्स वसूल करने का अधिकार मिला। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड
बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार मिला। यानी अब एक प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बन गई, कंप्लीट रूलर बन गई कि अपने इलाके में वो लोग टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड नियम बना सकते हैं। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्स। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई, तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड यानी जमीन, उस इलाके की जो खेती बाड़ी है, जमीन है, उसको कैसे कंट्रोल करें, वहां खेती बाड़ी से, एग्रीकल्चर से कैसा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे, तो इन सब चीजों में मिल गई। यहां तक बात आई समझ में? ठीक। नाउ दिस हैड टू बी डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. ब्रिटिश Yes, ईस्ट sir. इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करना, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम ऐसा बनाया कि जस्ट अ मिनट, so it has to be done in a way that could meet the enough revenue growing expenses of the company. जब ये डिसाइड किया कि वो कंट्री के रेवेन्यू सिस्टम को चेंज करेंगे, तो इट हैज टू बी डन इन a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब जब इस सिस्टम पर शुरू किया, ठीक है, इस तरीके बेटा, इट इज नंबर ऑफ टाइम, it has to be done in a way enough revenue to meet the growing expenses company. यानी अब इस एडमिनिस्ट्रेशन करना है कि कंपनी को क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले, ठीक है, टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। यानी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि इंडिया में रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम इस तरीके से बनाएंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, ताकि ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के सारे खर्चे क्या हो सकें, पूरे हो सकें। Now, a trading company had also to ensure that it could buy the product it needed and sell what it wanted. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इलाके में इस कायदे बनाना शुरू किए कि वो जो प्रोडक्ट खरीदना चाहती थी, वो प्रोडक्ट अपनी मर्जी से खरीद सके और कंट्री में बेचना चाहे वो बेच सके। यानी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने टेरिटरी में इस तरीके बनाने शुरू किए कि बिजनेसमैन और फार्मर्स वही चीजें प्रोड्यूस करेंगे जो कंपनी को खरीदना है, और कंपनी ने पूरे मार्केट को इस तरीके से कंट्रोल किया कि वो मार्केट में जो चाहे वैसा बेच सके। यहाँ तक हमारी समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. so over the years, the company also learned to move with some caution. Now, over the years मतलब इतने सालों एक्सपीरियंस से, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में आए हुए और अब करे हुए लगभग 30, 35, 40 साल हो चुके थे। तो इन 35, 40 साल एक्सपीरियंस था, उसमें कंपनी ने ये लर्न किया, है ना, ये सबक सीख लिया कि कंपनी को सम कॉशन
बड़ी सावधानी से इंडिया पर रूल पड़ेगा। ठीक है, सो उनको क्या सबक मिला? बीइंग एन एलियन पावर, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed prestige. तो कंपनी को एक बात ये समझ में आई कि बीइंग एन एलियन पावर, एलियन मतलब बाहरी, तो ब्रिटिशर्स कहां से आए थे? बाहर से आए थे। बाहरी ताकत मतलब दूसरे देश से आए थे। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आ गई, हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग नहीं हैं, हम बाहरी ताकत हैं। वी आर एन आउटसाइडर पीपल। ओके, सो इट नीड टू पेसिफाई दोज, हमें उन लोगों को पेसिफाई मतलब संतुष्ट करने की जरूरत है। दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड, जिन लोगों ने कंट्री साइड यानी ग्रामीण इलाकों में पुराने समय में कंट्रोल्ड किया है। दे एंजॉय अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, और उन लोगों का अभी भी सर देश के प्रेस्टीज ग्रामीण, मीन्स प्रेस्टीज मतलब सम्मान, अथॉरिटी मतलब कंट्रोल। ठीक है, कर ब्रिटिशर्स ने इस बात को अच्छे से समझ लिया कि यदि हमें हिंदुस्तान पर लंबे समय तक राज करना है तो हमें उन लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, उन लोगों को संतुष्ट रखना पड़ेगा जो लोग पुराने जम से कंट्री के रूरल एरियाज को कंट्रोल कर रहे हैं। अब कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल छोटे मोटे जमींदार, जमींदार होते हैं ना, यस सर। यस हाँ, सर। जैसे जैसे महाराष्ट्र में अलग अलग गांव में एक पाटिल करके पोस्ट होती है, आपने सुना होगा ना, पुलिस पाटिल। Yes, sir. यस, सर है ना। इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर छोटे मोटे राजा थे, है ना, ठाकुर लोग थे, कुछ पटेल लोग थे। तो दीज पीपल वेर कंट्रोलिंग द डिफरेंट एरियाज। तो ब्रिटिशर्स को ये बात समझ में आ गई कि हम लोग एलियन पावर हैं, बाहरी लोग हैं, दूसरे देश से आए हैं। तो यदि हमें इंडिया पर अपना राज अच्छे से चलाना है तो हमें इन लोगों को संतुष्ट रखना पड़ेगा। यानी गांव में जो जमींदार हैं, पुलिस पाटिल हैं, उसको अपने फेवर में कर लो, गांव के ठाकुर साहब को अपने फेवर में कर लो, जो पुराने जमाने के जागीरदार मनसबदार हैं इन लोगों को अपने फेवर में करो। ओके, सो दोस्त हु हैड लोग had to be controlled। ठीक है, those who had to be controlled but they could not be entirely eliminated। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात समझ में आ गई कि those who controlled local power, जिन लोगों के पास, है ना, छोटे छोटे इलाकों में ताकत है, कितने जमींदार हैं, 10-12 गांव का राजा है, पुराना जागीरदार है, तो सम्माननीय लोग हैं, इनको कंट्रोल करना है परंतु इनको पूरी तरीके से खत्म भी नहीं करना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रकार से इंडिया में नियम कायदे और कानून बनाना शुरू किया। ठीक है, जिसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे साइड मतलब ग्रामीण इलाकों को अपने कंट्रोल में किया। ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, जो लगान आता था उसको एक प्रॉपर सिस्टम के जरिए एडजस्ट किया। रीडिफाइंड द राइट ऑफ पीपल, ठीक है, जो अलग अलग लोग थे अलग अलग इलाकों में कुछ लोगों को राइट्स दिए, कुछ लोगों के राइट छीन लिए, एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांटेड। इंडिया में किसानों को वो फसल, वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए मजबूर किया
जिन फसलों की, जिन क्रॉप्स की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने फैक्ट्रीज में जरूरत थी। यहां तक बात आई समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, ठीक है। Yes, अभी हम इन Yes, कमिंग sir. पेजेस वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, है ना। जो हमारे कमिंग पेजेस Yes, sir. होंगे उसमें हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? रेवेन्यू फॉर द कंपनी, ठीक है। अभी जैसा टॉपिक में लिखा है रेवेन्यू फॉर द कंपनी, यानी इस सेक्शन के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू मतलब लगान, है ना, एग्रीकल्चरल लैंड का। लोग बाग खेती करते हैं तो खेती का क्या पे करते हैं? लगान पे करते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू फॉर द कंपनी, इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने वहां पर लगान की जो व्यवस्था थी, रेवेन्यू की जो व्यवस्था थी, उसको किस तरीके से डेवलप किया। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, तो अभी हम Yes, अभी sir. इस Yes, sir. now, Yes, sir. so in this section we'll discuss about the system of revenue collection, है ना, कि रेवेन्यू का क्या सिस्टम बनाया। So the company had become the divan, but it still saw itself primarily as a trader. ब्रिटिश कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए, परंतु अभी भी कंपनी का जो दिमाग था वो रेवेन्यू कलेक्शन के बचा था ट्रेडर। ट्रेडर मतलब यानी अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस पर ध्यान दे रही थी? अपने ट्रेड, ट्रेड मतलब बिजनेस पे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे उतना कंट्रोल नहीं था, परंतु रेवेन्यू तो चाहिए था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक इस तरीके का सिस्टम रेवेन्यू कलेक्शन का डेवलप किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू भी आता रहे और ज्यादा मगजमारी भी नहीं करनी पड़े। जब ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी तो कंपनी क्या कर सकती है? अपना सारा ध्यान बिजनेस एक्टिविटीज पर लगा सकती है, ठीक है। तो इट लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। तो कंपनी को एक लार्ज रेवेन्यू, बहुत बड़ा रेवेन्यू चाहिए, यानी रेवेन्यू इनकम तो रेगुलर आती रहे परंतु कोई झंझट ना हो, ठीक है। इसलिए डेवलप करना चाहती। सो द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा प्रयास क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा से ज्यादा क्या कलेक्ट कर सके? रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, ठीक है। एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। कंपनी का पूरा ध्यान सिर्फ एक बात पर था, किस पर? कि इंक्रीज रेवेन्यू एज मच एज, ज्यादा से ज्यादा लगान किसानों से वसूल किया जा सके, जितना ज्यादा से ज्यादा टैक्स व्यापारों से वसूल किया जा सके उतना ले लें, और लोगों को इस तरीके से मजबूर करें कि यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियम इस किए कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले और बंगाल से जो कॉटन और सिल्क क्लॉथ खरीदते थे वो सस्ते से सस्ता मिले, ठीक। सो विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। कंपनी ने बहुत सारे अलग अलग
तरीके अपनाना शुरू किए, ठीक है, जिसके कारण विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट डबल। 5 साल के अंदर ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से जितना सामान खरीदती थी उसकी वैल्यू क्या हो गई, डबल। ओके, सो बिफोर कंपनी इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम, तो 1865 पहले, अब 1860 मतलब दीवान बनने के पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में जो भी सामान खरीदना, ठीक है, सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में जो भी सामान खरीदना होता था उसके लिए गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी के सिक्के कहां, ब्रिटेन से बुलवाने पड़ते थे, ठीक। अब वो समस्या ब्रिटिश गवर्नमेंट की खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी, बंगाल से, ठीक है। सो नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फूड्स फॉर एक्सपोर्ट है। तो बंगाल से जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था, रेवेन्यू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करना शुरू किया, उसी रेवेन्यू से ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने हिंदुस्तान में सामान खरीदना शुरू किया, ठीक है। यानी पहले क्या होता था, यदि हिंदुस्तान में कोई सामान खरीदना है तो पैसा कहां से लाना पड़ेगा, ब्रिटेन से। कहां से लाना पड़ेगा, ब्रिटेन ब्रिटेन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन गुड। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू कहां से मिलना शुरू हुआ, बंगाल इंडिया, बंगाल से। यानी बंगाल अब वो क्या करने लगे, इंडिया से ही पैसा कमाते थे, इंडिया से ही रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और इसी रेवेन्यू से वो लोग क्या खरीदना शुरू कर दिए, सामान खरीदना शुरू कर दिए। गॉट इट। सो द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल नाउ फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, ठीक। Soon it was clear that Bengal economy was facing a deep crisis, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ कि बंगाल के जितने इलाके में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था वहां का इकोनॉमिक सिस्टम डीप क्राइसिस मतलब खतरे में पड़ गया। यानी कुल मिलाकर कंपनी के दीवान बनने के बाद कुछ ही सालों के अंदर बंगाल का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो खतरे में आना शुरू हुआ। क्यों, बिकॉज आर्टिजन्स वेर डेजर्टिंग विलेजेस। Now, different type of product, ठीक है, वाले कॉटन या टेक्सटाइल बनाने वाले, ठीक है, या फिर हाथी दांत की चीजें बनाने वाले, है ना, चाहे क्लॉथ बना रहे हो, ठीक है, रहे हो, उनको यहाँ पर क्या कहा गया है, आर्टिजन्स। व्हाट आर दे कॉल्ड, आर्टिजन। ओके, सो आर्टिजन्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इतने कंट्रोल के कारण क्या होना शुरू हुआ, आर्टिजन्स वेर डेजर्टिंग विलेजेस, ठीक है। तो आर्टिजन्स से उन्होंने विलेजेस खाली करना, डेजर्टिंग मतलब खाली कर देना, ठीक है। सो यहाँ पर डेजर्टिंग का मतलब है खाली करना। तो जो आर्टिजन्स थे उन्होंने गांव छोड़ना शुरू कर दिया, बिकॉज दे फोर्स टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूर करती थी कि वो अपने सामान हैं उन्हें क्या करे, लो प्राइसेस में सेल करें, ठीक है। सो पीजेंट्स वेर अनेबल टू पे द टैक्सेस, ठीक है। इसके अलावा जो
peasants मतलब so peasants were unable to pay the due that were being demanded for them. किसान भी क्या थे, लगान नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लालच में आकर के लगान बढ़ा दिया, पे नहीं हो पा रहा था, और इधर जो आर्टिजन्स थे उनको मजबूर कर रहे थे कि सस्ते दामों पर चीजें बेचें। तो आर्टिजन्स ने क्या करना शुरू किया, गांव छोड़ करके, विलेज छोड़ करके देश के उन इलाकों में जाना शुरू किया जहां पर तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक, किसान जो थे वो भी परेशान थे। बिकॉज ऑफ ऑल दिस, है ना, इन सब एक्टिविटीज के कारण क्या हुआ, तो artisanal production was in decline and agricultural cultivation showed signs of collapse. Okay, artisans थे, उनका प्रोडक्शन डिक्लाइन होना शुरू हुआ, है ना, सामान बनना कम हो, प्रोविंस से बहुत सारे कपड़े बनाने वाले जो वीवर्स थे वो छोड़ के चले गए, रस्सी बनाने चले गए। ठीक है, तो आर्टिजनल प्रोडक्शन कम हो गया और एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन, खेतीबाड़ी में भी जो प्रोड्यूस था वो कम होना शुरू हुआ। ठीक, देन इन 1770 में किया बंगाल में पड़ा। 70 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out. Okay, तो 1770 में एक भयानक अकाल पड़ा और इस में 10 मिलियन पीपल, 10 मिलियन लोग जो हैं बंगाल में मारे गए। ओके, एंड अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, और लगभग 33% पॉपुलेशन खत्म हो गई। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज 9:31। और नेक्स्ट Thank you, sir. the section here. Thank you, sir. 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 Sir gone.